Hello friends, welcome to my channel Prasad Joshi Astro Universe. Today we are going to talk about Libra Ascendant and how the month of July 22 is going to pan out for the Libra Ascendant people. See, first of all, Libra is a sign that is the most balanced among all the signs in the zodiac. Its symbol itself indicates that they are able to balance a lot of things in their life. These people are extremely good at creating a balance between their priorities. So, whether it is a balance between personal and professional life, or a balance between time devoted to family, friends, or the external social circle, these people are extremely adept at carving out that balance. Libra ascendant is ruled by Venus, and therefore, depending on the position of Venus in an individual horoscope, these people can be wealthy, healthy, or even wise, or a combination of all of them. But one thing is common amongst all the Libra ascendant people is that, irrespective of their place in the social hierarchy, most of the times they are able to maintain a positive outlook towards life, and at the same time they are able to enjoy their lives. So Libra ascendant and Taurus ascendant both are ruled by Venus, and this quality is common in both the ascendants. Now coming to July 2022 prediction, if you look at the ascendant Lord Venus is passing through the 8th house till 12th of July. Therefore, till the 12th of July, people will see some kind of a stress in their lives, because ascendant Lord passing through the 8th house generates stress for an individual. But people who are engaged in research activities, insurance work, astrologers, people who are associated with organization that find out hidden stuff like a CBI or a RAW, or people who are in corporate intelligence firm, actuaries, they will have a very good time for the whole month. For other people, till 12th of July, it's a stressful time, but from 13th of July, Venus will move in the ninth house, and the situation will ease out for them as far as the pressure is concerned. But yes, first 12 days are going to be difficult. At the same time, Ketu has come into the first house for Libra ascendant from April 22, and now slowly and steadily it will start to generate its effect for the Libra ascendant people. Ketu indicates detachment and spirituality, and therefore it is going to take the Libra ascendant people on that path going forward. So from 13th of July to 6th of August, people are going to dwell on the subject matter that is related to spirituality, because from 13th Venus will move in the ninth house, and Venus and Ketu will be in a trine relationship, which is considered very good as far as astrological angles are concerned. So this is also going to be a very good time for people who are elder in the age group, above 60-65 years, and they will be able to have a very good time with their grandkids. Now we will also look at the 12th house lord. 12th house lord for Libra ascendant is Mercury, and it is going to pass through the ninth house. Both the ninth house and 12th house are going to be evoked, and both of them indicates long distance journeys. So this would mean that in the month of July, Libra ascendant people will get an opportunity to travel to a foreign land, or it could be a travel to a religious place, or both. But it depends on the individual chart. But some kind of a travel is definitely indicated in the month of July. Now coming to marriage, Mars and Rahu combination is actually creating havoc for all the ascendants. In the case of Libra ascendant, this combination is forming in the seventh house. This Rahu Mars combination is generally not considered to be a very good combination, and since it is formulating in the seventh house of marriage and business partnerships, it makes a lot of sense not to get into fight with your spouse or business partners or even opponents, because seventh house also indicates the opponents of an individual. People who are in business are going to have a tough time in the month of July. But however, if you are not married, then you will have to wait for some more time, because seventh house is not getting any aspect from Jupiter or from Venus. Both of them are in sixth and eighth houses, thus not forming any association with the seventh house, and therefore they will have to wait. If you are in service, then the beginning of the month, 2nd to 10th of July, is going to be very fruitful for you. And especially if you are in a role that involves business development or marketing of products, then this time frame again will be very fruitful. And if you are looking for a job, then 5th to 7th of July would
be the 3 days where you will have a higher probability of finding a new job. Now let us look at the month-wise dates for Libra ascendant people. From 29th June to 1st of July, there will be a mental stress and most probably due to in-laws or relatives, because moon will be passing from the 8th house, and this 8th house also indicates the family of the spouse. As I said earlier, 2nd to 10th of July is a very good time for people who are in a job or service sector. People who are looking for earning money from the stock market, this is not a very good time for, because Saturn is passing through the fifth house, and though it is in its own sign, Saturn has now become retrograde and it will now move back to the fourth house. Saturn never gives anything easily to people. Although it is considered as yoga karak for the Libra ascendant people, it is still not going to generate many opportunities as far as the stock market is concerned. But if you have to identify 3 or 4 days where you will still be able to take some kind of a punt, that will be between 8th to 10th of July. The same is the problem with students. Education is also indicated by the fifth house, and the students will have to work extremely hard on the studies front in the month of July. And Saturn only rewards those people who are hardworking, who can keep their head down and who can slog it out. And all those people who follow the path that is showcased by Saturn are eventually rewarded by this planet. If you are looking to earn some kind of a wealth, then 8th to 10th of July and 16th to 18th of July are the two time slots which are the best in the month of July for earning wealth. And the problem is, if you don't get any money during this time, then the situation will remain lukewarm for you financially for the whole month of July. 19th to 21st of July is the time to best spend with your elder siblings, if you have any, to spend time with the members in your social circle. 22nd to 23rd July is the time that you can spend at home, enjoy the company of your mother and your family members. 24th to 26th July is the time to spend at home with kids or pursue activities that are related to arts, craft, and rest of the activities that are shown by the fifth house. If you are an artist, painter, sculpture, that is your profession, then this time frame is going to be good for your profession also. 27th to 29th July is a time that is going to be the toughest time in this month. There is a very high possibility that you will indulge in arguments with people in authority, and you should avoid getting into any kind of a fight with the people who hold a authoritative position either at your workplace or in society, because the chances are that you will get into trouble. So the dates where the Libra ascendant people needs to be very cautious in the month of July are: first date in the month, which is 1st of July, 11th to 12th July, and 27th, 28th and 29th of July. So 6 days in total: 1st July, 11th, 12th July, and 27th, 28th and 29th of July. If you are able to hold yourself back and not get into an argument during these 6 days, then the month of July is going to prove very beneficial for Libra ascendant people. The first 12 days are going to be challenging, but the good part is, the more deeper you enter in the month of July, the better it gets for you. So this is overall the summary for Libra ascendant people for the month of July. If you have liked this video, please do subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल प्रसाद जोशी एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि जुलाई 2022 का महीना तुला लग्न वालों के लिए कैसे साबित होगा। देखिए, तुला लग्न का स्वामी शुक्र होता है, तो ये जो लोग हैं ये एक अपनी जीवन में बैलेंस बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तुला लग्न का जो सिंबल होता है वो एक तराजू होता है। तो जैसे पलड़े में एक तरफ वेट डाला जाता है तो एक तरफ का पलड़ा झुक जाता है, दूसरे तरफ ऊंचा हो जाता है, उसी तरह से वापस वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इन लोगों को बैलेंस बनाने में ही इनका पूरा जीवन निकलता है, और ये लोग चीज़ों को बैलेंस करने में बहुत उस्ताद होते हैं। चाहे वो एक वर्क लाइफ बैलेंस हो, यानी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में सामंजस्य बैठाना हो, या आपको लोगों को अपनी प्रायोरिटीज में डिफाइन करना हो कि मेरे लिए कौन कितना इंपॉर्टेंट है, मैं किसको कितना टाइम दे सकता हूँ, ये सब तुला लग्न वालों को बहुत अच्छे से आता है। तुला लग्न का स्वामी शुक्र होता है, तो इनमें शुक्र की जितनी भी हैबिट्स होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। ये जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं, जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है। इसीलिए तुला लग्न के लोग जीवन में आप बहुत से व्यापारी भी देखोगे, क्योंकि तुला साइन ही व्यापार का है। तो ऐसे लोग हमेशा दूसरे लोगों को अच्छी सलाह दे पाते हैं, उनका फायदा करवा के ये लोग खुद भी फायदा उठाते हैं जीवन में।
तो अभी अगर हम जुलाई 2022 की बात करते हैं तो लग्नेश अष्टम भाव से गुजर रहा है। अष्टम भाव से जितनी भी चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे रिसर्च है, इंश्योरेंस का काम है, ज्योतिषी लोग हैं, जो भी सीबीआई, रॉ या ऐसे किसी भी इंटेलिजेंस फर्म से संबंध रखते हैं जहाँ पे आपको खोद की चीजें निकालनी पड़ती हैं, दबी हुई चीजें, या लोग एक्चुरीज के बिजनेस में भी होते हैं, उन सब के लिए ये महीना अच्छा है। लेकिन यहाँ पर शुक्र 8वें भाव में 12 जुलाई तक ही रहेगा। लग्नेश जब भी अष्टम से जाता है तो चीजों में तनाव पैदा करता है मनुष्य के दिमाग में, लेकिन 12 तारीख के बाद वो 9वें भाव में चला जाएगा। तो 13 जुलाई से लेके पूरा महीना उत्तरोत्तर अच्छा होता जाएगा तुला लग्न वालों के लिए। 12 तारीख तक जरूर आपको दबाव महसूस होता रहेगा जब तक शुक्र अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। विदेश यात्रा की बात करते हैं तो तुला लग्न वालों के लिए बुध नवम और 12वें दोनों स्थानों का मालिक होता है, और अभी 12वें स्थान का मालिक नवम भाव से गुजर रहा है। दोनों ही भाव आपके जर्नीज को दिखाते हैं और वो भी लंबी दूरी की यात्राओं को दिखाते हैं। इस महीने में जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए भी मौका बन सकता है, या जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं, लोग हज के लिए जाते हैं, या कई लोग बाहर किसी दूसरे देशों में अपने धर्म के मंदिरों में जाते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। तो दोनों ही पॉसिबल है, या तो आप रिलीजियस जर्नी पे जाएंगे या आप कहीं फॉरेन जाएंगे, दोनों ही चीजें संभव हैं जुलाई के महीने में। अभी ये जो राहु मंगल की युति यहाँ पर बन रही है सप्तम भाव पे, ये जिन जिन भाव में भी बन रही है उन सब भावों का जुलाई के महीने में सत्यानाश होगा। तो सारे ही लग्न वालों को किसी न किसी भाव से तो परेशानी आनी है जुलाई के महीने में। तो अगर आप तुला लग्न की बात करेंगे तो ये युति सप्तम भाव में बन रही है। तो सप्तम भाव आपकी पति या पत्नी को दिखाता है, आपके बिजनेस के पार्टनरशिप को दिखाता है। इससे हम कैसे डील करें? इससे हम ऐसे ही डील कर सकते हैं कि पति पत्नी के साथ वाद विवाद में ना पड़े, बिजनेस पार्टनरशिप्स के साथ भी वाद विवाद टालें। तो राहु मंगल की युति अच्छी नहीं कहलाती है। सप्तम हाउस से आपका बिजनेस भी देखा जाता है, तो जितने भी लोग बिजनेस में हैं उनको भी अपने इसमें बड़े झगड़े दिखेंगे होते हुए, धंधे में काफी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, जिससे कि व्यक्ति को झगड़ने की तरफ पुश करेगा ये राहु मंगल का कॉम्बिनेशन। तो आप अगर व्यक्ति अपना कुल काम बनाए रखता है तो ये महीना सही है, नहीं तो ये फिर झगड़े वाली स्थिति बनेगी बिजनेस में भी। तो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए शुरू का महीना अच्छा है। 2 से 10 जुलाई का समय सबसे अच्छा समय है अगर आप नौकरी करते हैं तो। और अगर खास करके आपकी नौकरी बिजनेस डेवलपमेंट में है या आप मार्केटिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट मार्केटिंग के जो लोग हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है जुलाई में, 2 से 10 जुलाई। और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनके लिए 3 दिन है, 5, 6, 7 जुलाई, जब उनके पास मौका लग सकता है नौकरी मिलने का, अगर नहीं है तो। लेकिन उसके लिए आपको अपनी कुंडली के महादशा अंतरदशा स्वामियों को भी देखना पड़ेगा कि क्या वो परमिट कर रहे हैं आपको जॉब देने के लिए, क्योंकि ये तो गोचर का परमिशन है जो सबसे आखिरी में देखा जाता है। अभी अगर आप मंथ वाइज देखेंगे डेट किस तरह से निकलती है, तो 29 जून से 1 जुलाई तक का जो समय है इसमें फिर से आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, क्योंकि चंद्र आपके अष्टम भाव से निकलेगा। तो अष्टम भाव से आपके पत्नी का परिवार भी देखा जाता है, उनके सगे संबंधियों से आपको कुछ तनाव हो सकता है, और लग्न स्वामी भी अष्टम में ही गुजर रहा होगा उस समय, तो यहाँ चंद्र और शुक्र का भी कॉम्बिनेशन बनेगा। तो मानसिक तनाव तो ऑटोमेटिकली आएगा ही। किसकी वजह से आएगा? तो वो आपके पत्नी के रिश्तेदारों की वजह से, पति या पत्नी के रिश्तेदारों की वजह से आ सकता है। पंचम भाव से यहाँ पर शनि गुजरेगा, तो शनि का अब वक्री मूवमेंट शुरू हो गया है, तो वो वापस केप्रिकॉन साइन में जाएगा। तो पंचम भाव में शनि, पंचम पंचमेश में ही है लेकिन वो शनि है, तो आपको आसानी से तो कोई चीज देगा नहीं। जितने भी लोग शेयर बाजार से संबंधित हैं उनको भी इस जुलाई के महीने में पैसा कमाने में बहुत समस्या होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अमाउंट उतना मिलेगा नहीं उन लोगों को। अगर बेस्ट दिन अगर आप देखोगे जुलाई में, तो 8, 9 और 10 जुलाई 3 दिन है जब उनको कुछ पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। कि पंचम भाव से आप विद्या भी देखते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी आसान महीना नहीं होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी स्टडीज के फ्रंट पे। शनि सिर्फ उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करता है जो सर झुका के मेहनत करते जाते हैं, शराब सिगरेट नहीं पीते, बुरी आदतों में नहीं फंसते, एक गोल बना के रखते हैं और उस गोल के पीछे भागते हैं, दिन रात नहीं देखते मेहनत करते समय, तही तो भी शनि आपको रिवॉर्ड करता है, नहीं तो फिर शनि का पनिशमेंट करने का तरीका अपना होता है। अगर आपको धन उम्मीद है तो 2 टाइम स्लॉट्स हैं इस महीने में, एक 8 से 10 जुलाई है और दूसरा 16 से 18 जुलाई है। ये दोनों टाइम स्लॉट्स ऐसे हैं जब आपके पास पैसा आएगा। अगर इन 4 दिनों में आपके पास पैसा नहीं आया तो पूरे महीने में ऐसे ही आपका ठंडा गर्म बना रहेगा। आपको कुछ ऐसा सब्सटैंशियल अमाउंट नहीं मिलने वाला फिर, अगर इन 4 दिनों में नहीं मिला तो। 19 से 21 जुलाई का जो टाइम है उसमें आप अपने भाई बहनों के साथ बिताइए,
आपके जो भी सोशल सर्कल में जो भी आपके दोस्त यार हैं, जितने भी लोगों से आप सामाजिक तौर पर मिलते जुलते हैं, उन लोगों के साथ समय बिताएंगे तो अच्छा टाइम बीतेगा। 22 से 23 जुलाई ऐसा समय है जो आपको घर पे बिताना चाहिए। अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम बिताइए। 24 से 26 जुलाई का समय आप अपने बच्चों के साथ बिता सकते हैं, या पंचम भाव से जी हुई चीजें कर सकते हैं। तो जितने भी लोग आर्टिस्ट हैं उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि पंचम भाव से कोई भी क्रियात्मक या रचनात्मक कार्य देखा जाता है। तो पेंटिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, मूर्तिकार शिल्पकार हो गए, जितना भी आर्ट्स क्राफ्ट का काम होता है वो सब 24 से 26 जुलाई में करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। कई लोगों की हॉबी भी होती है, तो 24 से 26 जुलाई में आप उस हॉबी में अपने आप को इंडल्ज कर सकते हैं। और अगर आपका प्रोफेशन ही ये है, आप आर्टिस्ट ही हैं, तो फिर ये 3 दिन और भी अच्छे गुजरेंगे। 27 से 29 जुलाई ऐसा समय है जब आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में पड़ सकते हैं। छठवें भाव से चंद्र गुजरेगा, छठवां भाव आर्ग्यूमेंट्स का, झगड़े का है। गुरु नेपच्यून यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो अगर आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ उलझते हैं जो आपसे अथॉरिटी में बड़ा है, कार्यस्थल पे या सामाजिक तौर पे आपसे ऊंचा ओहदा रह सकता है, तो आपको समस्या आएगी इस टाइम पे। तो बेहतर है कि किसी भी विवाद को टालिए। आपके पास डेट्स हैं, तो अभी आप मान लीजिए कभी झगड़े में उतरते भी हैं तो आपको पता है ये डेट आपको फेवर नहीं करेंगी, तो बेहतर होता है कि हम बैकआउट कर जाएं उस झगड़े से। देखिए, 1 जुलाई महीने का पहला दिन ही चंद्रमा आपका अष्टम में रहेगा, तो अच्छा समय नहीं है। उसके बाद 11-12 जुलाई जब वो 12वें से गुजरेगा, और 27-28-29 जब वो छठे से गुजरेगा। तो खाली आपको 6 दिन अवॉइड करने हैं महीने में, 1 जुलाई, 11-12 जुलाई और 27-28-29 जुलाई। यहाँ पे केतु प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो आपको धीरे धीरे आपको आध्यात्मिकता की तरफ वो लेके जाएगा, स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन जिसको बोलते हैं। 1 से 12 तारीख तक तो शुक्र अष्टम में है, लेकिन जैसे ही वो नवम में गुजरेगा 13 जुलाई से, तो शुक्र और केतु के बीच में आपका नवपंचम योग बन जाएगा, जिसे हम ट्राइन भी बोलते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ये बहुत अच्छा त्रिकोण कहलाता है, क्योंकि एक तरह से ये दो त्रिकोण भावों का कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसके बाद 13 जुलाई के बाद व्यक्ति का स्पिरिचुअलिटी में, धर्म में इंटरेस्ट और गहराता जाएगा। और शुरू का महीना भले ही टफ हो 12 जुलाई तक का, लेकिन उसके बाद 13 जुलाई के ऑनवर्ड्स आपको और अच्छा लगने लगेगा, महीना उत्तरोत्तर अच्छा होता जाएगा। तो ओवरऑल अच्छा ही समय है तुला लग्न वालों के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।